नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीएमसी के नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। अब कूच बिहार तृणमूल कांग्रेस जिला युवा उप सभापति नीतीश रंजन सरकार ने की पार्टी छोड़ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कूच बिहार दौरे के 24 घंटे बाद ही एक के बाद एक और नेता ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है और राज्यों में सभी जगहों से नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कूच बिहार तृणमूल कांग्रेस युवा उप सभापति नीतीश रंजन सरकार ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। एक पत्रकार सम्मेलन कर उन्होंने बताया कि वह शुभेंदु अधिकारी के अनुगामी है और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। अब जबकि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी है तो वह भी अपने समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कुछ आरोप भी लगाए और कहा कि उनके साथ करीब 200 समर्थक है जो एक साथ पार्टी को छोड़ेंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में रहते खुद को अपमानित होने का आरोप लगाया और कहा कि वह शुभेंदु अधिकारी के साथ ही रहेंगे। স্থানীয় আমার দাদারাও আছে, সবাইকে আমার অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা। তো আমি প্রথমে কিছু নিজে বলি, তারপরে তোমাদের দুই একটা কোশ্চেন যদি উত্তর দিতে পারি দিব। 2011 সালে পরিতোষকর মিন্টুদা, যে এখন কিষাণ ক্ষেত মজুরের জেলা সভাপতি, তার হাত দিয়ে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি। আবার বলবো কি যোগদান করি। তো তারপর মিন্টুদার নেতৃত্বে পলিটিক্সটা শুরু করি। তখন আমাদের জেলা সভাপতি ছিল আমাদের রবিদা, এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। তো ওনার নেতৃত্বে পলিটিক্স শুরু করি এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাই, যা যা নির্দেশ দেয় সেই নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি। মিন্টুদা তারপরে শহর ব্লক সভাপতি তখন ছিল, সেই শহর ব্লক সভাপতি আমার অ্যাক্টিভিটিস দেখার পর আমাকে টাউন ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট করে এবং 20টি ওয়ার্ডের সাথে সারা জেলাতেই মিন্টুদার সাথে আমরা দৌড়াই। পরবর্তীতে মিন্টুদা কিষাণ ক্ষেত মজুরের জেলা সভাপতি হয় এবং বেচারাম মান্না তার নেতা ছিল। সেই বেচারাম মান্না যখন মিনিস্টার বেচারাম মান্না যখন আসে কোচবিহারে, এমনও দিন গেছে যে কোচবিহারের দিনহাটার থেকে প্রোগ্রাম করে রামপুর বক্সিহাট পর্যন্ত আমরা প্রোগ্রাম করেছি। সকালবেলা বার হতাম, রাত্র 12টার সময় আসতাম। জেলার উদয়নদার থেকে শুরু করে বিনয়দা, ভূষণদার থেকে শুরু করে আব্দুল জলিল আহমেদ, প্রত্যেকের সাথে আমার সুসম্পর্ক, প্রত্যেকে আমাকে স্নেহ করে এবং নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো আমার ভালোবাসে। আমাদের যে এখন যুব সভাপতি অভিজিৎ ভৌমিক, তিনিও আমাকে ছোটো ভাইয়ের মতন ভালোবাসে। কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে পার্টি অফিসে যখন যাই, ক্রিকেট টিমের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে যারা বাংলা ভাষা জানে না, বাংলা কথা বলতে পারে না, হিন্দিতে কথাবার্তা বলে, তারা নতুন নতুন রকম রণনীতি তৈরি করতেছে, নতুন নতুন ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। আমার পক্ষে সেই নীতি মানা সম্ভব না। এটাতে আমি নিজে অপমানিত বোধ করি, আমার ভালো লাগে না সেটাও। যেটা পার্টি অফিসের অনেকেরই অপছন্দ, কেউ বলতে পারছে না, আমি বললাম ওদের ইনস্ট্রাকশন আমার পক্ষে শোনা সম্ভব না। 2 নম্বর কথা, শুভেন্দুদার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সেপ্টেম্বর মাসের 18 তারিখে আমরা যাই, 18 তারিখে আমরা যাই এবং পরিবহন দপ্তরে দাদার সাথে আমাদের অনেক কথাবার্তা হয়। প্রতিনিয়তই আমাকে ফোন করে, সপ্তাহে তো মিনিমাম একদিন আমার সাথে ফোনে কথাবার্তা হয়। তো আমরা দাদার সাথে আছি, এটাই হলো বক্তব্য। দাদার সাথে আমরা আছি। এখন দাদা তো অনেক উঁচু লেভেলের নেতা, গণ আন্দোলন থেকে উঠে আসছে একটা বিশাল মাপের জননেতা। এখন দাদা কি করবে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। धूपगुड़ी बाजार में भीषण आग, कई दुकानें खाक। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी बाजार में कल रात भीषण आग लगने से 100 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि कल देर रात करीब अचानक बाजार में आग लग गई। बाजार में आग लगी की खबर मिलते ही धूपगुड़ी, बासरहाट, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी से दमकल की 7 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, वहीं लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। रैली, रोड शो और किसान के घर लंच, बीजेपी के चुनावी कैंपेन को रफ्तार देने कल पश्चिम बंगाल आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। शाह शनिवार को बंगाल पहुंचेंगे। यहां वे रैली और रोड शो करेंगे। साथ ही उनकी मौजूदगी में पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। 2 दिन के अपने बंगाल के दौरे के दौरान शाह यहां जनसंपर्क भी करेंगे। वहां राज्य के किसानों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद अमित शाह मिदनापुर में एक किसान के घर पर लंच करेंगे। वहीं इसके अलावा ममता बनर्जी के करीबी और पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल करने को लेकर खास आयोजन किया जा रहा है। 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम आए मामले। 24 घंटे में 31,000 मरीज हुए ठीक। 338 लोगों की 24 घंटे में गई जान। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लेकिन अब भारत में संक्रमण फैलने की रफ्तार पहले से कम हो गई है। ब्राजील, जर्मनी, टर्की समेत कई देशों में भारत से ज्यादा मामले आ रहे हैं। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से कम कोरोना केसेस आए हैं। वहीं 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 22,890 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 338 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 31,087 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। 4 दिन पहले 14 दिसंबर को 22,065 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। इससे पहले 7 जुलाई को 22,753 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 99,79,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,40,779 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,13,000 हो गए हैं। अब तक कुल 95,20,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के मुताबिक 17 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 15 करोड़ 79 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। किसान आंदोलन 23वें दिन में किया प्रवेश। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। अन्नदाता कानून वापसी पर अड़े हैं। इस बीच सरकार अलग अलग तरीकों से किसानों को समझाने मनाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों की कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। वे कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। इधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि पीएम को किसानों से बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। किसानों का कहना है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ठंड को देखते हुए ज्यादा टेंट लग रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों के नाम चिट्ठी भी लिखी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत दूसरी चिंताओं पर भरोसा दिया। पीएम मोदी ने अन्नदाताओं के साथ साथ पूरे देश से तोमर की चिट्ठी को पढ़ने की अपील करते हुए इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच और बड़ा तकरार। कोरोना वायरस की आड़ में डीजीपी मुख्य सचिव का दिल्ली आने से फिर इनकार। ममता ने बुलाई बैठक। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को आज फिर दिल्ली तलब किया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार दोनों ने ही दिल्ली आने से मना कर दिया है। डीजीपी मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया था। बता दें कि ममता सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों के दिल्ली आने में असमर्थता जताई थी। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। कल शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के विधायक सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि कोई आपातकालीन बैठक नहीं है। आज की बैठक नियमित बैठकों का हिस्सा है। हर शुक्रवार मुख्यमंत्री नेताओं से मिलते हैं और
बैठकें होती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घने कोहरे में लिपटा डुवर्स, अलीपुरद्वार जिले में ठंड से कोहराम। पूरे राज्य के साथ साथ पूरे डुवर्स में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुक्रवार सुबह से डुवर्स के विभिन्न इलाके में भीषण शीत लहरी देखी जा रही है। आलम यह है कि सुबह 10 बजे तक सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। चारों ओर घना कोहरा देखा जा रहा है। बताया जाता है कि इस वर्ष ठंड के मौसम में आज पहली बार डुवर्स के अलीपुरद्वार जिले में कड़ाके की ठंड पड़ी है। चारों ओर घने कोहरे के बीच मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। दुनिया भर में दूसरे दिन लगातार 7 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीजों की मौतें। अब तक 16.67 लाख लोगों की गई जान। पूरी दुनिया अभी भी कोरोना महामारी से गिरफ्त है। लगातार दूसरे दिन 7 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 7.09 लाख नए मामले सामने आए और 12,519 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 11 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.12 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,558 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद ब्राजील, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, रूस, ब्रिटेन, पोलैंड, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,52 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,67,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 5,28 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 7.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अभी भी संक्रमित हैं। उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,22,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए और
13 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में करीब 1 करोड़ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 26,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 68,000 मामले दर्ज किए गए। बंगाल में 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से हुए ठीक। 2000 से ज्यादा मामले भी आए सामने। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच इस संक्रमण से अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी गुरुवार को 5 लाख को पार कर दिया। इधर गुरुवार को एक बार फिर राज्य में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2245 नए मामले आए तथा 44 और मरीजों की मौतें हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले 2293 नए मामले सामने आए थे और 46 मरीजों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,456 हो गई है, जिसमें से 19,597 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9,235 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,747 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,01,624 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 94.56% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 42,773 नमूनों की जांच हुई। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 65,81,465 हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के बड़े नेताओं ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अपने ऊपर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह, कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मुकदमों को रद्द किया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई न की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर कोर्ट मामलों को रद्द नहीं करती है तो मामलों का ट्रांसफर बंगाल से बाहर किया जाए। देर रात भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली। एनसीआर अलवर में था केंद्र। राजस्थान के अलवर जिले में बृहस्पतिवार रात मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में भी महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात 11:46 बजे आए भूकंप की तीव्रता 4.2 थी, जो अलवर में 5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। वहीं उत्तर पूर्वी भारत में भी रात के समय मणिपुर के लोगों ने धरती के कंपन दर्ज किए। इससे पहले सुबह के समय राजस्थान के सीकर इलाके में भी भूकंप के हल्के झटके लगे। खास बात यह है कि तीनों ही जगह भूकंप का केंद्र स्थानीय स्तर पर ही रहा। दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के जिलों में रात करीब 11:46 पर अचानक कंपन महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर करीब 4.2 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र में भी रात करीब 10:03 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसकी तीव्रता करीब 3.2 आंकी गई और इसका केंद्र मोरांग से 38 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतह से 36 किलोमीटर नीचे था। किसी भी जगहों पर भूकंप से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।